أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اور ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان کی تحقیقی خبر۔ بلا شبہ وہ چند جوان تھے جو ایمان لائے اپنے پروردگار پر، اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جبکہ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار زمین و آسمان کا پروردگار ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، اور ہم نے اگر پکارا تو یہ بے تکی بات ہوگی، ہم نے ایسا پکارا اور ہم نے ایسا کہا تو یہ بعید از عقل بات ہوگی۔ محترم حضرات، اصحاب کہف، گزشتہ کل ہمارا درس یہاں تک پہنچا تھا کہ لوگ جب میلے میں گئے اور میلوں کی خرافات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائی اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان کی دولت جس کو نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے اور بغیر کسی محنت کے ہمیں ایمان والا بنایا، اور اسی ایمان کی برکت نے ہم کو یہاں جمع کر رکھا ہے۔ اس میں کوئی غیر مسلم نہیں ملے گا، ہم سب کو یہاں ایک جگہ اکٹھا کیا، جمع کیا، یہ ایمان کی دولت نے ہی ہمیں جمع کیا ہے۔ تو ایمان کی دولت بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ یہ لوگ میلے میں سے واپس لوٹے اور اپنے شہر افسوس پہنچے، جس کو عربی لوگ ترسوس کہتے ہیں اور ترتوس بھی کہتے ہیں۔ میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ یہ شہر ترکستان کے ایک بارڈر کا شہر ہے، ازمیر۔ ازمیر سے 25 کلومیٹر کی دوری پر وہ شہر واقع تھا، اور آج کھنڈارات کچھ موجود ہے۔ الغرض یہ لوگ اپنے شہر میں آ گئے اور اپنی بستی میں آ کر، اپنے گاؤں میں آ کر سب سے پہلی جو فکر انہوں نے کی وہ فکر مسجد کی تھی کہ ہم کو مسجد بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے اور وہ چکی ہے جس کے ارد گرد مسلمان گھومتا رہتا ہے۔ چکی ہوتی ہے، اس میں ایک کھوٹا ہوتا ہے، اس کھوٹے کے درمیان وہ پاٹ گھومتا رہتا ہے، تو مسلمان یہ کھوٹا جو ہوتا ہے وہ مسجد ہے اور درمیان میں مسلمان گھومتا رہتا ہے، یعنی مسلمان کا ہر کام کاج، مشورہ، نماز جو کچھ ہے مسجد سے منسلک ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں اور اسلام میں مسجد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے 4.5 کلومیٹر پہلے مدینہ سے کوبا میں ٹھہرے، اور کوبا میں پہنچ کر پہلی مسجد بنائی، مسجد کوبا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ حج میں گئے ہوں گے، عمرے میں گئے ہوں گے، تو وہاں جا کر 2 رکعت نماز
نماز پڑھتے ہیں اور وہاں جانے کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو بہت بڑی مسجد بھی ہے، آج جدید مسجد موجود ہے اور جانے والے جاتے بھی ہیں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے روز چلتے ہوئے نکلتے تھے اور مسجد قباء پہنچتے تھے، اور کبھی سواری پر بھی جاتے تھے۔ تو ہم لوگ کو بھی جانا چاہیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں بغیر وضو کے بھی ہے، تو وضو وہاں جا کر کریں یا اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، سنت ادا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی، مدینہ پہنچے تو اونٹنی پر سوار رہے، اور سارے صحابہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ میری اونٹنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی جہاں ٹھہرے گی اس کے گھر میں اتر جاؤ۔ اب سارے صحابہ منتظر ہیں کہ میرے گھر کے پاس رکے، میرے گھر کے پاس رکے، میرے گھر کے پاس رکے۔ ابو ایوب انصاری کا گھر آیا، یہاں گھر ہے، اور یہ اونٹنی آئی چلی اور آگے نکل گئی۔ ابو ایوب انصاری بھی مایوس ہو گئے کہ مجھے لگا کہ میرے گھر کے پاس ٹھہرے گی، اور یہ اونٹنی آگے جا کر بیٹھ گئی، پھر اٹھی اور وہاں سے اٹھ کر واپس آئی اور ابو ایوب انصاری کے گھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو جس جگہ یہ اونٹنی پہلے جا کر بیٹھی تھی وہی مسجد نبوی آج قائم ہے۔ تو اونٹنی نے بھی برکات کو حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی بنائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا جو اللہ کے گھر کو بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے، جنت میں اللہ اس کا گھر بنائیں گے۔ جس کو توفیق ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے اللہ کے ذکر کے لیے جس نے مسجد کو بنایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور مہربانی اور کرم اور شفقت، کہ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ میری امت میں اکثر غریب ہوں گے، ہر ایک تو مسجد نہیں بنا سکتا، ہر ایک کی قدرت اور طاقت کی بات نہیں ہے۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد، اس سے بھی کم، یعنی پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے اتنی بھی مدد کر دے گا یا اس سے بھی کم مدد کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ تو آدمی کی جتنی طاقت ہو اس طاقت کے حساب سے مسجدوں میں چندہ دیں، مسجدوں کی مدد کریں، مسجدوں میں جو ضروریاتی چیزیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے۔ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں آمنا باللہ، کون؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، ڈرتے کس سے؟ اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون؟ من آمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے آباد کرتے ہیں۔ تو مسجد کو آباد کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے، نماز پڑھنے والے یہ آپ لوگ ہیں۔ اسی طرح امام ہے، مؤذن ہے، صفائی کرنے والے ہیں، کوئی صفائی کر دیتا ہے، کوئی کچھ لا کر دے دیتا ہے کہ بھائی فلاں ضرورت ہے لا کر دے دی، یہ تمام کے تمام لوگ آباد کرنے والے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں جو ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ ہماری مسجد کیسے آباد ہو جائے، 100% لوگ نماز پڑھنے والے کیسے بن جائے، فجر کے بعد بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو بہت بڑی بشارت ہے کہ ہدایت پانے والے ہوں گے، یہ لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ تو ہمیں مسجدوں میں عبادت بھی کرنا ہے اور مسجدوں کی دیکھ ریکھ بھی کرنا ہے، مسجدوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری بھی کرنی ہے۔ حضرت
आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद दुआएं भी करती है और मस्जिद बददुआएं करती है। मस्जिद दुआ करती है कि अल्लाह जिसने मुझे आबाद किया उसको तू आबाद कर, और जिसने मुझे वीरान किया उसको तू वीरान कर। अब मोहल्ले के लोग समझ ले अच्छी तरह कि मस्जिद में नमाज पढ़ते और मस्जिदों को आबाद करते हैं तो अल्लाह उनको आबाद करेगा, और जो मस्जिदों को वीरान करते हैं तो वो लोग वीरान होंगे, किस्म किस्म की तकलीफ में मुसीबतों में मुब्तला होते हैं और फिर उलमाए किराम के पास जाते हैं। भाई मस्जिदों की बद्दुआएं लग रही है आपको, मस्जिद कह रही है कि अल्लाह जो मुझे वीरान करे उसको तो वीरान कर। जब मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मोहल्ले वाले मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपनी मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, तो फिर वीरानी तो आई नहीं आनी है। तो अगर हमारे घरों को आबाद करना है, अपनी जिंदगियों को आबाद करना है, तो हमें मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मस्जिदों को आबाद करेंगे, वो इतने मुकद्दस होंगे कि मस्जिद के फरिश्ते उनके पास बैठेंगे। तो ये मस्जिद ये आप बैठे हैं, मस्जिद के फरिश्ते आपके पास बैठे हुए हैं, और फिर कभी दिखते नहीं है तो वो आपस में मशवरा कर दे, भाई अपना साथी दिखता नहीं है जो यहाँ जिक्र करता था, यहाँ नमाज पढ़ता था, यहाँ कुरान पढ़ता था, वहां जिक्र करता था, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, गया कहां? तो तहकीक होती है भाई वो बीमार है। तो फरिश्तों की जमात जाकर उसकी इयादत करती है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फरिश्तों की जमात उसको दुआ देती है। तो मस्जिदों को हमें आबाद करना चाहिए। हजरत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला पहुंचे शाम, इन्होंने लैंप देखा, बड़ा अच्छा लैंप, जो जलाते थे तो बहुत उजाला होता था। मदीना तशरीफ लाए, 9 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, हमारी मस्जिद, इसमें कोई ऐसा इंतजाम नहीं था लाइट का, रोशनी का, इन्होंने मगरिब की नमाज से पहले उसको लगा दिया और लाइट कर दी, तो बहुत उजाला हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब में तशरीफ लाए तो देखा कि मस्जिद रोशन रोशन है। कहा क्या ये, क्या किस तरह रोशनी? कहा कि ये तमीम दारी लाए हैं ये लैंप और इन्होंने जलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरी अगर लड़की होती तो मैं तमीम दारी से उसकी शादी करा देता। क्या कहा? तमीम दारी से मेरी बेटी का मैं निकाह करा देता। जरा सोचने की बात है, कोई मामूली बात है मस्जिद की खिदमत कर देना, मस्जिद के इंतजाम को मजबूत करना और मस्जिद की जरूरियात को पूरा, कोई मामूली बात है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं अपनी बेटी दे देता। इमामुल रसूल, इमामुल अंबिया क्या कह रहे हैं, मेरी अपनी बेटी दे देता। उनके चचा का लड़का एक नौफिल बिन हारिस, नौफिल हारिस का, उनके बड़े चचा का बेटा था। अल्लाह के नबी मेरी बेटी है, मेरी बेटी आप ही की बेटी है, आप कहे तो तमीमदारी की निकाह में दे दे, तमीमदारी की निकाह में दे। इतनी बड़ी बात है। तो ये आप मस्जिदों में चंदा देते हैं, मदारिस पे चंदा देते हैं, ये कोई मामूली ना समझो। ये मस्जिदों की कुछ खिदमत कर देते हैं, इसको मामूली ना समझो, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके इंतजाम भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन एक बात ये याद रखे, अल्लाह ताला कह रहा है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, ये मस्जिद अल्लाह की है, किसी और की मिल्कत नहीं है, किसी और की मिल्कत नहीं है। तो मस्जिदों ये मिल्कत अल्लाह की है, तो मस्जिदों का निजाम तवाज़ुन के साथ होना चाहिए, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तू मैं नहीं होना चाहिए, किसी को गिराने और किसी को बढ़ाने की कोई कोशिश होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह अगर मस्जिद का निजाम चलेगा तो अल्लाह ताला हमारी आबादियों में बरकतें करेगा, हमारी बस्तियों में अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाएगा। एक वाकया में अर्ज कर दूं, ये मस्जिद अल्लाह की है। हजरत यूसुफ, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इमामों में बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, पढ़ने के लिए गए, छोटे थे, अम्मा ने कहा जा कमा क्या, दुकान की तरफ जा रहे हैं, जाते जाते मदरसा था, अंदर दाखिल हो गए। हजरत इमाम का दर्स सुना, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, शौक हुआ, बैठ गए मदरसे में। अम्मा सुबह निकालती थी और कहती थी जाओ धंधे के लिए, और वो जाते थे मदरसे में। अम्मा को पता लग गया ये तो धंधा करने में बेचती हूँ, कुछ कमा करने के लिए बेचती हूँ, और ये तो दूसरी जगह जा रहा है। वो मदरसे में जाकर शोर की हो,
खूब शोर किया। कुछ औरतें होती हैं शोर करती हैं, हमेशा याद रखें औरतों को कभी आगे ना करें, और कभी उस्ताद से कुछ तकलीफ पहुंचाए तो माफ कर दिया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि उस्ताद ने उसको शफकत में मारा हो, उसकी इस्लाह के लिए मारा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा लग जाता है, कुछ ज्यादती हो जाती है, कोई जानबूझकर तो मारेगा नहीं, ज्यादती हो जाती है तो फिर वावेले होते हैं, शोर शराबा होता है, उस्ताद को जलील किया जाता है, इससे बड़े बड़े नुकसान होते हैं। हमें यूं लगता है कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, और वो एकदम से नहीं होते, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे उधई होती है, उधई घुन, वो लकड़े को जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता खत्म करती है, इसी तरह ये खत्म करती है। अलगर्ज तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम यूसुफ छोटे हैं, उनकी माँ को कहा घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत ऊंची मकाम पर पहुंचेगा, मैं देख रहा हूं कि उसका बहुत ऊंचा मकाम है। तो वो औरत कहने लगी कि ये बुढ़ापे में बक रहा है, गैरपन बकस आपने कहा गैरपन बकस है बुढ़ापे से, तो वो कहने का गैरपन बकस है, कहा कि घबराओ नहीं, मैं देख रहा हूं तुम्हारा बेटा पिस्ते के तेल में तले हुए बादाम की फालूदा पी रहा है और बादशाह के पास बैठ कर पी रहा है। ये अल्फाज हजरत की जबान से निकले कि पिस्ते के तेल में तले हुए बादाम का फालूदा बादशाह के पास बैठ कर पी रहा है। तो उनकी मां देख रही है, धोबी के लड़के थे, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह धोबी के लड़के थे, बहुत गरीब थे, खस्ता हाल थे, फटे पुराने कपड़े। जब ये बोला कि बादशाह के पास और फालूदा पिएगा बैठकर, तो उनकी मां गोल गोल कर देखने लगी, कहा बात तो यही है, बात आई गई हो गई। हजरत इमाम यूसुफ फारिग भी हो गए, बहुत बड़े मौलवी भी बन गए। एक मर्तबा उनकी गली का एक यहूदी जो उनके घर के सामने रहता था, उसने घर बनाया तो उसका कठेरा उसने बाहर निकाला। तो अगर कब अंदर करने कठेरा बाहर क्यों करते हो, अंदर बानक बन से, ये हमारे यहाँ होता है ना करो ऐसा। ये कठेरे वगैरह तुम बनाकर चले जाओगे, कब्र में चले जाओ तब भी गुनाह होंगे, गुनाह का मीटर चालू का चालू रहेगा, तुम दूसरों की सहूलत के लिए बनाओगे और गुनाह तुम्हें होगा, नुकसान तुम्हें होगा। बड़े बड़े कठेरे निकाले जाते हैं और जगह रोक दी जाती है, बहुत बड़ा। हदीस पाक में आता है कि जो एक बालिश के बराबर भी किसी की जमीन दबाएगा तो उसको सातों जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। तौक पहनाएंगे कैसे, मुंडी भी बड़ी की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा। एक हदीस में यूं है, हजरत वहाबी बिन मुनब्बा कहते हैं, अल-अशफा व नज़ाइर के हाशिये में लिखा है कि मैंने पुरानी किताबों में देखा है कोई 6 दानिक, एक दानिक के बराबर, यानी 6 गेहूं का वजन कितना होता है, उतना किसी का माल दबाया होगा, पैसा खाया होगा, जमीन दबाई होगी। 6 गेहूं कितने वजन का होगा, कुछ भी नहीं होता। तो ये 6 गेहूं के बराबर किसी का माल दबाया होगा, अल्लाह ताला कयामत के रोज उसकी 700 नमाजें जो बाजमात होगी उसके नामाए अमाल से ले लेगा। जरा सोचने की बात है भाई, बहुत डरने की बात है। तो उस यहूदी को कहा हजरत ने, अंदर लो भाई, आपकी जगह में बनाओ, तो नहीं योज बन अल्लाह ये हमारी यहाँ आदत होती है, आई थी तो जल्लू हमके लुत बन से तारो कशु नहीं चाल है, ये हमारी यहाँ आदतें होती है। तो यहूदी ने भी हजरत को ऐसा ही कहा और ये भी कहा कि तू जब पालकी में बैठकर आएगा ना तब मैं ये कटेरा उठा दूंगा। उस जमाने में कोई पालकी में कौन बैठता था, बादशाह बैठते थे, बड़े बड़े लोग बैठते थे और उसको लेकर चलते थे और अतराफ में पुलिस वगैरह और हथों बच्चों के शोर होते थे। बहुत उसका एक वट जिसको हम कहते हैं वो होता था, एक पोजीशन होती थी, एक बहुत बड़ा उसका मकाम होता था। तो क्या कहा, हजरत तो मामूली आदमी थे, अभी कुछ उनका लोग पहचानते भी नहीं थे। तो उसने क्या कहा, पालकी में बैठकर आएगा ना तब ये कटहरा खाऊंगा। अब किसी को यूं कहूं मैं कि तू हेलीकॉप्टर में जैसी ना हो तोजा कटेरोड से, तो हेलीकॉप्टर में कौन बैठकर आएगा, बहुत मुश्किल बात है। तो उसने ऐसा ही कहा, पालकी में बैठकर आओगे ये कटेरा हटेगा। अब देखो, अब आगे ये 2 वाक्य हो गए,
दोनों वाक्य अब आपको समझाता हूं, और ये भी समझाता हूं कि ये मस्जिद अल्लाह की है। हारून रशीद ने एक मर्तबा कसम खा ली अपनी बीवी के सामने, किसी बात पर आपस में महसूल मुबासा हो गया, तो इन्होंने कह दिया कि मैं, अगर तू आज रात मेरी मुल्क में तूने रात गुजारी तो तुझे 3 तलाक। अब हारून रशीद की जो हुकूमत थी यहां सिंध तक थी, और वहां दूर से दूर शाम, और शाम से कहां कहां तक थी, हजारों किलोमीटर दूर। उस जमाने में तो हेलीकॉप्टर और ये फ्लाइट वगैरह तो थे नहीं, घोड़ा दौड़ दौड़ कर कितना दौड़ेगा, सिंध की हुकूमत तक तो वो दौड़ नहीं सकता, वहां शाम तक तो, बगदाद से शाम तक तो जा नहीं सकता। अब वो परेशान कि मैं क्या बोल दिया मैंने, कि रात मेरी हुकूमत के बाहर गुजारना है, और हुकूमत के बाहर तो गुजार नहीं सकती, रातों रात तो जा नहीं सकती, सुबह से शाम तक पहुंच नहीं सकती, अब क्या किया जाए, परेशान हो गया। हमारे यहाँ होते हैं बाज लोग कि गुस्से में आकर तलाक की कस्में खा लेते हैं, तलाक की शर्तियां तलाकें दे देते हैं, और फिर पछताते हैं, फिर उलमाए किराम के पास जाते हैं, फिर बातें बदलते हैं, मैं ओम की दे लो, ओम की दे लो, ओम की दे लो। इसलिए हम अक्सर इनको यूं कहते हैं तुम लिख कर लाओ, क्योंकि अभी कुछ बोलते हैं, 5 मिनट के बाद कुछ दूसरा बोलेंगे, और तीसरा जो आएगा उसके साथ जो दूसरा आएगा वो कुछ तीसरा बोलेगा। तो हमेशा अपने जबान पर और अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, वरना बहुत पछताओगे। और बाद में चलकर ये बातें मैं आपको बताऊंगा हमारे यहाँ तलाक़ें किस तरह होती है, कैसी बातों पर होती है। अब देखिए, हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, हारून रशीद ने तलाक की कसम खा ली, सारे उलमाए किराम को बुलाए, उलमाए किराम को बुलाओ दरबार में, उलमाए किराम दबा खचाखच पूछा कि भाई ऐसी तलाक की मैंने कसम खाई है कि मेरी बीवी आज की रात मेरे मुल्क में गुजारे तो उसको 3 तलाक। अब क्या किया जाए, कोई हल है आपके पास? वो कहने लगे कि यहां से तो सिंध जाने में 4-5 दिन लग सकते, हफ्ता लग सकता है, और इधर जावे तब भी हफ्ता लग सकता है, इसलिए तुम्हारी बीवी को तलाक हो जाएगी। सारे उलमाए किराम ने यह फतवा दे दिया। अब हारून रशीद एकदम से परेशान, सोच में, दरबारियों से किसी को कहा वजीर, कोई आलिम और है, इमाम हनीफा का कोई शागिर्द है वो हल निकालेगा, इमाम अबू हनीफा का कोई शागिर्द हो तो उसको बुला के ला, वो कोई हल निकालेगा। तो किसी ने सोच कर कहा कि हाँ, याकूब है, याकूब इमाम यूसुफ, बुला के लाओ इनको। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे और कहा, उनसे ये मसला उनके सामने रखा, कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बीवी को आज की रात मस्जिद में सुला दो। क्या कहा? मस्जिद में सुला दो। सारे ताज्जुब में पड़े, सारे उलमाए, क्या बात कर रहे हो? कहा मस्जिद किसी की नहीं होती, कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, मसाजिद अल्लाह, मस्जिद अल्लाह की होती है। किसकी होती है? अल्लाह की होती है, और किसी की मिल्कत नहीं होती। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये फतवा दिया तो एकदम से वो उछल पड़ा और अपने पास बिठाया और कहा कि फालूदा पेश करो। फालूदा पेश किया गया, उनकी माँ की बात भी सामने आ गई। अब बादशाह ने कहा इनको इनाम दो और इनको पालकी में ले जाकर इनके घर छोड़ो। अब पालकी में वो ले जा रहे हैं, पुलिस अतराफ में है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह गली के नुक्कड़ पर जाकर इनको कहा या उतारो और उस यहूदी को बाहर निकालो। क्या कहा? उस यहूदी को बुला के लाओ। यहूदी को बुलाया और कहा इमाम यूसुफ है, तो घबराने की पोजीशन में तोड़ देता हूं। तो लातों के बुत बातों से मानते, लातों के बुत बातों से मानते। अलगर्ज इन लोगों ने मस्जिद बना दी, असहाब कहफ ने। मस्जिद बनाने के बाद मशगूल हो गए अल्लाह की इबादत में। रफ्ता रफ्ता इनकी ये बात कि ईमान वाले हो गए, अल्लाह को मानने वाले पूरे गांव में फैल गए। उधर बादशाह की एक आदत थी तकियानूस की, कि वो घूमता था, बस्ती बस्ती घूमता था और तहकीक करता था कि कोई आदमी बुतों को छोड़कर किसी और की इबादत नहीं करता। तहकीक करता था कि कोई अल्लाह की इबादत तो नहीं करता। और जहां भी जाता था वहां जुल्म सितम करता था। अगर किसी के बारे में मिल जाता कि ये अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह को मान रहा है,
तो ये क्या करता था, कत्ल कर देता था, या फिर उसको संसार कर देता, पत्थर मरवाता था और संसार करता था, या उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था, या फिर उसको फांसी पर लटका दिया जाता था शहर बना के दरवाजे पर, ताकि आने जाने वाले उसको देखे, और कई दिनों तक उसको लटकाए छोड़ता था, इतनी सख्त सजाएं देता था। अब ये अपने आदत के मुताबिक शहर अफसूस में पहुंचा। शहर अफसूस में पहुंचकर इसने तहकीक शुरू की। अपने जो कारिंदे थे उसको भेजा कि जाओ तहकीक करो, क्या हाल है। चुनांचे वो तहकीक में निकले, और तहकीक करते करते लोगों ने इनको बताया कि यहाँ कुछ नौजवान हैं मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं, वो बुतों की पूजा नहीं करते। ये लोग वापस आए बादशाह के पास, और बादशाह को कहने लगे कि आप तो दूसरे लोगों को कत्ल करते हैं और अपने घर के लोगों को छोड़ देते हैं। ये शहजादे लोग थे, घर के लोग क्या कहेंगे कि अपने घर के लोगों को छोड़ देते और दूसरे को कत्ल करते हैं। बादशाह ने कहा बात क्या है, कहा चंद नौजवान हैं, 7-8 नौजवान हैं जो अल्लाह को मानते हैं, बुतों की पूजा से मुतनफिर है, इनको मेरे सामने हाजिर करो। बादशाह के सामने हाजिर किया, और बादशाह ने कहा कि कौन लोग हो, फला फला फला। अच्छा, इसकी भी इबादत करते हो, अल्लाह की इबादत करते हो। अच्छा, अल्लाह की इबादत करते हो, तुम अपना अकीदा बयान करो। तो इन्होंने यही कहा, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नद'ू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। बादशाह के सामने इन दोनों खड़े होकर मजबूत दिल के साथ कहा कि हमारा परवरदिगार जमीन व आसमान का परवरदिगार है, हम अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं पुकारेंगे। बादशाह के सामने कह दिया। और कहने वाला कौन था? मकसल मीना, जो इनका सबसे बड़ा जो था, इनमें सबसे बड़ा जो था, और वो गोया उनका सरदार भी था, गोया उनका अमीर भी था। उन्होंने बेटोक कह दिया कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, ये जमीन और आसमान का मालिक वही है। बादशाह ने कहा कि इनके कपड़े उतार दो, जो शाही जोड़ा था जोड़े उतार दिए गए, इनके जेवरात उतार दो, जेवरात उतार दिए गए, इनके ताज वगैरह सब कुछ उतार दिया गया। और फिर इनसे कहा गया कि देखो अभी तुम्हें मौका देता हूं, तुम नौजवान हो, तुमको मैं छोड़कर जा रहा हूं अभी, लेकिन मैं जब लौट कर आऊं तो मुझे पूरा रिजल्ट चाहिए। अल्लाह की इबादत छोड़ो, अल्लाह को मानना छोड़ो, और ये जो बुतों की इबादत है वो शुरू कर दो, वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर वो वहां से निकल गया। आगे क्या वाकया बना इंशाअल्लाह आइंदा कल आपके सामने अर्ज किया।